So ladies and gentlemen, today we are in Sector 15, Gurgaon, and we are here to celebrate the Jagannath Yatra Festival, which is the oldest and the largest chariot Hindu festival. The original Yatra and the festival, of course, is called the Jagannath Puri Yatra, which happens in Puri in the Indian state of Odisha. However, today we are in Gurgaon Sector 15, where there is a representation of that Yatra, which is celebrated in various parts of the country and not just Jagannath Puri. Now, this Yatra is dedicated to the three deities of the Hindu religion. The first deity, of course, is Lord Jagannath, who is Lord Krishna, who is avatar of Lord Vishnu. The second deity is Lord Balbhadra or Lord Balram. And Lord Balram, of course, was the elder brother of Lord Krishna. And the third deity is the goddess Subhadra. Lady Subhadra was the sister of Lord Krishna and married Arjuna, one of the Pandavas, and together Arjuna and Subhadra gave birth to Abhimanyu, who is most famous for destroying the Chakravyuh formation of the Kauravas, leading to the eventual win of the Pandavas in the epic Mahabharata. Now, this festival of Jagannath Puri is celebrated in the brighter half of the Hindu calendar in the month of Ashar, which falls in June and July. Today, of course, is 27th of June 2025, and we are in Gurgaon Sector 15. Now, this festival with the three deities perched in a chariot consists of the act of drawing these chariots, in original form from the Jagannath Puri temple to a nearby temple called the Gundicha temple, where the deities stay for 7 days, and after 7 days they return back to their abode in Jagannath Puri temple. Now, the chariots themselves are very special and are decorated with prescriptions which are there in the Puranas, no less. In fact, the festival gets its mention in the Puranas, in the Brahma Puran and in Skand Puran and Padma Puran. In fact, a lot of European travelers documented the Jagannath Yatra from the 13th century, and very epic and vivid descriptions are available from the travelers from the 17th century. In fact, previously it has been documented that a lot of people were so devoted and got carried away during this festival that they used to throw themselves under the wheels of the chariot. But mercifully, this tradition stopped around the 17th century. The chariot is made of wood, not of any other wood, but a special wood which is taken from specific trees like Dhausa and Pasi, and the chariots are sculpted by very special carpenters who come from the area, princely state of Dhaspalla, and these carpenters have got the hereditary rights over the generations for the construction of these chariots. The logs, the wooden logs which are taken from the trees, are first floated traditionally into the river Mahanadi in Orissa, where ostensibly they get purified, and then they are collected near Puri and then transported by road. The chariots have names as well. The chariot of Lord Jagannath is called Nandi Ghosh. The chariot of Lord Balram or Lord Balbhadra is called Talbhadra, and Tal Ghosh rather. And then that of goddess Subhadra is called Darpadalana. The chariot of Lord Jagannath has 16 horses, 16 white horses. That of Lord Balram or Lord Balbhadra has 14 horses which are black in color, and that of goddess Subhadra consists of 12 horses which are red in color. There's a lot of devotion over here, lots of noise over here, lots of people are excited. It's a tradition in the Hindu religion, and this Hindu religion, the Jagannath Yatra, has even lent a word called Juggernaut in the English language, which represents an indomitable, unstoppable force once the Rath starts rolling with its wheels. In fact, this word Juggernaut has been used by a lot of famous writers like H.G. Wells, and in fact, I somehow recall that Charles Dickens also used this word Juggernaut in his story called The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit. That was published in 1844. Wonderful atmosphere over here. Lots of people with lots of excitement in this Jagannath Yatra festival. Nice to be here. और यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा में हमारे साथ तो उपस्थित हैं यहाँ पर एक श्रद्धालु। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा प्रमोद महंती है, मैं यहीं सेक्टर 15 में ही रहता हूँ। किस उपलक्ष्य में आए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये रथ यात्रा है
रथ यात्रा। कुछ बताइए हमें रथ यात्रा के बारे में, क्या होता है इसमें? विश्व प्रसिद्ध श्री भगवान जगन्नाथ का है एंड ये पूरे होल वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ हर साल करा जाता है और हम हर साल यहाँ पर। आप उड़ीसा से हैं? हाँ जी, हाँ उड़ीसा में कहाँ से? कटक। और जगन्नाथपुरी में भी आप जा चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, कई बार। वो तो हमारा बगल में ही है। तो और कुछ संदेश देना चाहेंगे सभी दर्शकों को? भीड़ से थोड़ा सा संभल के रहे, बच्चों को ध्यान रखें और बाकी तो भगवान साथ में ही है, तो सब सुख कुशल मंगल सब सही होगा। हम जगन्नाथ जी की यात्रा में आए हैं। आज बहुत अच्छा दिन है और ये हमारे शुभ कर्म है जो हमें यहाँ इस मंदिर में मिला और उनके दर्शन पाए बस। और यहाँ पर कौन से भगवान की पूजा होती है? जगन्नाथ भगवान की होती है और दाऊ दादा जी हैं और सुभद्रा जी हैं, तीनों बहन भाई हैं, उनकी पूजा होती है यहाँ पर। और आप किसके साथ आई हैं? मेरी सिस्टर के साथ आई हूँ। संदेश देना चाहेंगी सभी को इस उपलक्ष्य में, जगन्नाथ यात्रा में? सब जगन्नाथ जी की यात्रा में आए, सबके लिए सब शुभ हो। आपकी तरफ से कोई संदेश? भगवान के दर्शन है, सभी को आना चाहिए, जितना हो सके सहयोग दें उनकी यात्रा में। और इस जगन्नाथ यात्रा को देखने के लिए बहुत से श्रद्धालुगण हमारे साथ उपस्थित हैं। आप अपना नाम बताएंगे हमें, आप कौन हैं? जी सर, बद्री प्रसाद प्रजापति। और आपके साथ? पत्नी है सुशीला। और आपके 2 बच्चे? ये पोता है। अच्छा, पोते हैं आपके, इनके नाम क्या हैं? उसका लक्की है, उसका वो है कार्तिक। अच्छा, यहाँ पर क्या मनाया जा रहा है? यार वो है, ये है उड़ीसा वालों का ये भगवान जगन्नाथ का ये रथ। आप भी उड़ीसा से हैं? कहाँ से हैं आप? एमपी से हैं। कानपुर से? एमपी हाँ, कानपुर से। अच्छा। छतरपुर जिला। अच्छा, तो आप यहाँ पर किन भगवानों की पूजा होती है आज? आज यही जगन्नाथ महाराज भगवान की पूजा होती है। कुछ भी संदेश देना चाहें जो मन से बात निकले आपकी? बस यही संदेश है कि परिवार सही सलामत रखे बस। और जगन्नाथ यात्रा में सेक्टर 15 गुड़गांव में बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो यहाँ पर भी ट्रैक्टर चालक हमारे साथ उपस्थित हैं। आप अपना नाम बताइए और कैसा महसूस हो रहा है? आपका नाम क्या है? आप ट्रैक्टर चलाते हैं? तो यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा में क्या लेकर आए हैं? पानी का टैंकर लेकर आए हैं। पानी का टैंकर लेके आए हैं? कितना बड़ा पानी का टैंकर है ये? 5000 लीटर का है जी। अच्छा, और जगन्नाथ यात्रा में किसकी पूजा होती है? जगन्नाथ भगवान की। आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से। और कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है सर। आपके दोस्तों के नाम बताइए। मोनू नाम है इनका, उसका अर्जुन नाम है, इसका अक्षमान नाम है। श्रद्धालु उपस्थित हैं यहाँ जगन्नाथ यात्रा में सेक्टर 15 गुड़गांव में। सर, अपना नाम बताइए प्लीज। शिवम। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आपको? और आपको तो प्रसाद भी मिल गया, जब प्रसाद के दर्शन करा दीजिए, बहुत ही लकी लोगों को मिलता है ये। हाँ, और गुड़िया के हाथ में बेटी प्रसाद ने है। नारियल चढ़ाया था, उसको नारियल मिले हैं और तो प्रसाद मिले हैं। तो गुड़िया हमें बताओगी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर? बता दो। नारियल प्रसाद। और सर, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि ये किस संबंध में आप यहाँ पर आए हैं और क्या हो रहा है यहाँ पर? बस जगन्नाथ यात्रा यहाँ से निकल रही है सेक्टर 15 से, तो हमें पता था, तो हमने कहा चलो एक बार देख के आते हैं। अभी पूरी यात्रा में सम्मिलित होंगे थोड़ी देर बाद। अभी बाकी तो उड़ीसा में सबको पता ही है, आपकी पूरी से निकलती है हमारी। तो आप उड़ीसा से हैं? नहीं, उड़ीसा से नहीं, हम तो गुड़गांव से ही है, लेकिन हाँ पता है कि उड़ीसा से ये मेन होता है। तो गुड़गांव में रहकर भी आपको जगन्नाथ यात्रा से इतना लगाव? क्योंकि वैसे भी हम सेक्टर 15 में जगन्नाथ मंदिर आते रहते हैं, तो पता है थोड़ा। और बाकी जगन्नाथ तो विष्णु जी का रूप ही है। बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत बहुत बधाई गुड़िया के लिए भी, जिनके हाथ में ये रहा प्रसाद, जो कि बहुत ही लकी लोगों को प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों के लिए कोई संदेश? बस एक आइए आप भी इसमें शामिल हो, ये बहुत ही अच्छा है। आपको एक अच्छा फील होगा यहाँ आने के बाद, आपकी सारी दुख दर्द सब मिटेंगे। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। And ladies and gentlemen, we have with us Bibu Charan Sahu, who is one of the volunteers out here. बीबू, हमें बताइए कि यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर समारोह चल रहा है? एक्चुअली ये गुरुग्राम का जो जगन्नाथ मंदिर है वो 1990 से है, ठीक है। तो पिछले 15 साल से हम लोग ये रथ यात्रा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हम लोग इसको एक राउंड रिलायंस फ्रेश होके रेलवियर होके एक राउंड लगाते हैं। और सेक्टर 15 में हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है अलग प्रसाद मलिक, जो कि ये अध्यक्ष हैं यहाँ की एसोसिएशन की। तो अलग साहब, हमें बताइए यहाँ पर किस उपलक्ष्य में ये समारोह हो रहा है? ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। ये हर साल इसी दिन और इसी महीने में निकलती हैं।
और ये हमारी पूरे हिंदुस्तान में क्या बाहर के देश में भी रथ यात्रा होती है। और आज के दिन में ये रथ यात्रा उसी के जो हमारे पूरी की रीति रिवाज के हिसाब से हमारे सारे चलते हैं। और ये रथ यात्रा तो 7 बजे तक चलेगा। और इस उपलक्ष्य में सभी दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज सब संदेश है ये आगे जो हर साल ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे मंदिर बनना यहाँ पर है, मंदिर बनने के लिए कोई सहयोग करे, ये है हमारा संदेश। मैं राधेश्याम गोयल, मकान नंबर 694 सेक्टर 15 पार्ट 2 गुड़गांव में रहता हूँ। ये जगन्नाथ जी का मंदिर ये बहुत सुंदर काम किया है। ये मेरे प्रधान जी हैं AP मलिक साहब के दिशा निर्देशन में इतना सुंदर कार्य हो रहा है, कई सालों से देख रहा हूँ। बहुत कृपा और ये भगवान की साक्षात कृपा है यहाँ पर। और मैं लगातार लगभग रोज़ आता हूँ इस दर्शन करने। मुझे तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी भी यहीं दिखाई देते हो, जगन्नाथ जी तो यहीं हैं। जय जय श्री राधे, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय। पंडित जी को संदेश। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है हर साल यहाँ से निकलता है। हर भक्तों का हमारा निवेदन है रथ यात्रा का आगे दी जाए हमारे साथ। हमारा जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड का है, उड़ीसा के नहीं कि किसी एक का भगवान, पूरे ब्रह्मांड का जगन्नाथ जी है। हर किसी का भी होता है कि आके जगन्नाथ जी के पास हमारा रथ यात्रा में जुट जाए। हम यही कामना करते हैं, हर जगन्नाथ हर मंगल करे सर। अशोक पंडित उड़िया में कोई संदेश दीजिए सभी को। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि पूरा विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा हुए। जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र आउ भौणी सुभद्रा सांगे लोक दर्शक मान दर्शन देवाई श्री मंदिर बाहरी आज रोड रे रथ उपर चली जाइछंती। तो आज ये रथ यात्रा रे जो भक्त माने भगवान को मंदिर को जाई पारंतु नहीं, से माने मध्य आज भगवान को दर्शन करिया पई रथ रे दर्शन करि पारिबे। और आज ये किंवदंती अच्छी जे जी आज भगवान जगन्नाथ रथ रस्सी को छुईब सी बहुत भाग्यवान, बहुत भाग्यशाली हो पार। तेणुक समस्त को मोर अनुरोध, आपण मैंने महाप्रभु जगन्नाथ रथ दौड़ी को टाणी आ भगवान को आशीर्वाद देवा पाए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उत्तम कुमार मिश्रा। हमारा हो रहा है रथ यात्रा का, जिसमें भगवान जो है वासुदेव बलभद्र सुभद्रा देवी का जो है रथ में लेके घुमाया जाएगा, फिर वापस लेके आया जाएगा। तो अपन किन भगवानों की पूजा होती है आज? भगवान वासुदेव, भगवान बलभद्र और सुभद्रा। So ladies and gentlemen, overall a wonderful trip to Sector 15 Gurgaon at the Jagannath Rath Yatra Festival. Lots of devotees out here. It's just about to rain as well, but it's quite pleasant. It's a bright and a sunny day. Otherwise, a little bit of a boondamandi going on, which is providing quite a respite from this brutal heat. But everybody enjoyed themselves over here. It was my first attendance at the Jagannath Rath Yatra Festival ever anywhere. And this gives me the inspiration to attend the real one at Puri as well. But so far so good. I'm signing off. This is Prashant from Sector 15 Gurgaon.